आपके पास यहाँ पर ये कोर्स नजर आ रहा है which is called Zero to Hero, right? So you go to this course and then you have each session का यहाँ पे एक component है, we call it component, right? So ये component में आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 components हैं. अब 8 component will come near its time, which is on finance. So introduction to entrepreneurship is your first component, which we will do today. So यहाँ पर आपको जो पहला component है उसका यहाँ पे content नजर आ रहा है. So very quickly, this frame that you can see right now, इसमें हो क्या रहा है? So here we have the resources, right, which we have to read, which we have to discuss in the classroom. Here is your chatbot, which you can use for communication. You can also send me the voice chatting. We do the chatting with everyone. You can also send me personal messages. And once I'll make the groups, then you will be able to do chat and messages between the groups. From the next session, I will make the group because I will also give you some group activity. This section we will use for uploads. There will be a few assignments where you have to upload a few things. Otherwise, हमारी assignments जो हैं वो embed होती हैं इसी board के अंदर. But as you will move forward, you will see to this. Now, these are our learning tabs. We call it micro learning tabs. और सारा जो आपका content है वो इसके अंदर जो है वो divide हुआ है. You can see this yellow one. This is the learning tab, which is not available to you at the moment. Lekin whenever I want, I can make it available to you. So it's very much the dynamics of this platform. Any questions so far, guys? Yes, Dr. Farah Komal here. मुझे ये चीज़ बताइएगा कि because see, today is the only session that probably I'm taking live with you. Yeah. So what is the dynamics for the participants who are taking, self-paced learning? Yes. All right. So I'll explain both the versions. So see, in the blended learning, the participants will remain with me for the next 2 months, which means 8 weeks, starting from today. So what I will be doing with them, I will be going through each session content with them, and simultaneously we will be doing, and let me tell you, we would be doing this pitch deck because they are with me. So as they are moving forward with the sessions, they are developing their pitch deck. Now, what is pitch deck? So what are the components of the pitch deck? Let me show you. So these are your, this is the component of your pitch deck. ये उसके आपको नजर आ रही हैं जो आपकी stages हैं. Now, this is exactly the same pitch deck which you can use, for any incubation center. And interestingly, इसको तो आप किसी investor को भी भेज सकते हैं. So my whole idea was that by the end of the first 2 months, my participants should have a first sketch of their pitch deck. And after that 2 months period, then they will have an opportunity to attend the guest speaker sessions and to ask questions, from their guest speakers, their mentors, because gradually हम ये भी होगा, मैं mentoring कर रही होंगी इन लोगों की, पर जब मैं किसी को बुलाऊंगी तो ये अपने pitch deck से related questions भी उनको पूछ सकते हैं. तो जो next 1 month होगा after this 2 month session, वो अब mentoring session में चला जाएगा. Now, जो ये तो है blended learning का version, और assignment साथ साथ चल रही होंगी, but हर session के बाद we will get back to this pitch deck. I will give them some assignments based on this pitch deck, और of course जो उन्होंने last week में किया होगा काम, I will give them the review. And I keep on reviewing their pitch deck as we are moving forward. Now, in case of those who are doing their 24/7 wala, they will get this pitch deck, but after completing the course. Because मैं क्योंकि वहाँ पे नहीं होंगी और pitch deck मैं उनको पहले से दे दूँ, there's a lot of confusion there. So as they are moving forward, so उनको अपना ये पूरा कोर्स खत्म करना है, और pitch deck आपको मिलेगी तब, when you'll go through this course, and then there is, let me take you there. So आपका हर session के बाद जो है वो एक quiz है, right? So what I want, और उसको pace of course आपने accordingly करना है because it's as per your convenience. So आप जाते हैं 0 to Hero में, right? और वहाँ पर जाकर आप अपना कोई भी एक सेशन उठाते हैं, and आप
So at the end of each session, you have this quiz. Now you have to attend this quiz and you have to pass it. Now pass का हमने रखा हुआ है, आपने देखा है, and this is for everybody actually. So हमारे competition में जो है वो लोग जाएंगे, which is our first round of the competition, which will be like after 3 months. उसमें वो लोग जाएंगे जो कि 90% में आएंगे. So they are the toppers of the class, right? So ये मैं क्लास को ना मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है. हमारी ओपन एनरोलमेंट्स को भी जैसे 24/7 वाले हैं एंड माय ओन क्लास एज वेल. सो उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा. तो जो टॉप 10 परसेंटाइल है दैट विल क्वालिफाई फॉर आवर फर्स्ट राउंड. अच्छा, वो जब क्वालिफाई, तो इसीलिए मैंने कहा जब तो आपको मिल जाएगा, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको पिच डेक मिल जाएगा and then you will start preparing the pitch deck और फिर आपको मैं मेगा राउंड के अंदर ले जाऊंगी. So it's very much the thing हमने जो करनी है, and I'm sure कि आप लोगों ने हमारी वेबसाइट पे जाके, and then I'll take your next questions. So let me take you to our website here. यहाँ पर हमने पूरा रोड मैप दिया हुआ है, the road map that you guys have. So this is our road map. That's what I need to follow. And I believe it's a great opportunity for all of us. मेरे लिए तो इसलिए because I wanted to create an impact in the entrepreneurial ecosystem, and I think now I have an opportunity to do so. So this is the roadmap that we are following. So if you look at this, that is your 2 months of rigorous entrepreneurship training with me. And of course, if you are online, you are also doing it yourself. And then we are moving, and as we are moving forward, of course, you are not sitting idle. You are working on your MVP. You guys understand MVP, everybody? Yes. Okay, so this is the lingo actually that we will learn. So this is called minimum viable product, right? So जो minimum viable product इसमें से बहुत डिटेल में हम देखेंगे. So as you are moving forward, you are developing your minimum viable product. And यहाँ पे वो 1 month के आपके sessions हैं. 4 आपके यहाँ पर गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं, उनसे हम Q&A सेशन कर रहे हैं. एंड यहाँ पे आपको मैंने जो टॉप 10 परसेंटाइल है उसको यहाँ से निकाल के फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर देना है. Now this is a national round because a lot of people are coming from here. So for example, university students where they are using the same content of EdTech Works, and the teachers are preparing them, but they need to be the top 10 percentile of the classroom. Similarly, in my case, my students have to be their, top 10 percentile में. Similarly here, 24/7, top 10 percentile. So these people then will qualify from here. But यहाँ जाने से पहले आपको प्रूव करना है कि आप में वो ग्रिट है, जो एक एंटरप्रेन्योर की ग्रिट होती है. आपको प्रूव करना है that you have, a practical idea. So MVP का मतलब ही यही है, वेरी क्विकली बताऊं, कि आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया पे आपने जाकर रिसर्च किया है, कंज्यूमर का फीडबैक आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया है, and then it's a marketable one. It's not like a perfect product, but you can take your MVP out, can get it tested, and in most of the cases you would be able to sell it. It's a very basic product of yours, but it's not a prototype. It's a complete value proposition, but the value proposition can be less. So this is very much the first 3 months ka exposure, right, जो हमारा होगा. And once the teams will go here in the ground 1, we will have a competition. And everything is online. And then the top teams, and we will decide how many teams only. It all depends how many participants we'll have over here. Then the top teams will go there in the mega round. अच्छा, जो teams mega round में जाएंगी, उनके लिए अब फिर हम ये चीजें खोल देंगे, which is access to finance and connecting to the industry. So teams who will go to the mega round, we will make sure that they are connected to the right people so that they can get their seed money, and we will also connect them to the industry. For example, हमारा जो last हुआ था session, उसमें हमारे पास 2 startups थे जो mega round में आए थे, जो 3D printers वाले थे. Now I have started connecting them with the industry. So this is what I'm doing, and there are many other examples as well. Access to finance में yes, I am talking to Kamyab Jawan. I'm talking to the banks. Interestingly, जो State Bank of Pakistan ने startup fund एक बनाया हुआ है, but people don't know about it. So our job is to inform you about this as well. So we'll make it sure that you get the access to this.
Another news, which is a great news for us as well, and this year we have done too, जो हमारा पिछला cohort था, that the teams जो यहाँ पे top 3 teams होंगी, they will be fast tracked to NIC Lahore and NIC Karachi. Now by fast track I meant कि आप select नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप उनके final round में चले जाएंगे. So this is the value proposition that we are trying to create for the entrepreneurial landscape. तो ये तो तब की बात है जब आप top 10 percentile में आएंगे. However, before that, ये वाला हमारा process है जो 3 months रहेगा. Over to you guys if you have questions, please. Zarman? I do have one question. I wanted to know कैसे we can qualify for the top 10 percentile. That's number one. Okay. Number two is like as far as the MVP is concerned, do we have to actually prepare in parallel the MVP within those 2 months? That's it. The two questions. So आपका पहला क्वेश्चन तो ये था कि डॉक्टर फरा हम इसमें क्वालिफाई कैसे करेंगे टॉप 10 परसेंटाइल में. सो जैन आपका एक चीज है जो आपकी असेसमेंट्स हो रही हैं वीकली बेसिस पे, मतलब आपके या आप 24/7 में हैं या आप हमारे साथ हैं ब्लेंडेड में, तो एक तो वो कंपोनेंट है. सो अगर आप वहाँ पर ऑन एवरेज अगर आप 90 परसेंटाइल पे नहीं आते हैं तो इसका मतलब है यू नॉट गुड इनफ. सो यू हैव टू बी टॉप 10 परसेंटाइल में. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है. तो वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया विच इज वेरी सिंपल फॉर मी टू डू, मैंने फंडलिंग करनी है ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग जिस तरह से लोग आएंगे. तो हमारे फर्स्ट कॉहर्ट में भी हमारे पास 700+ पार्टिसिपेंट्स है, तो हमने उनकी फंडलिंग करनी थी. तो मेथड बड़ा क्लीन है कि जी आपने टॉप 10 परसेंटाइल में आना है जिस भी इन्वायरमेंट में हो. तो पहला उसका क्राइटेरिया इज योर असेसमेंट, राइट. अच्छा, वो हो जाती है. देन उस फंडलिंग के बाद देन द नेक्स्ट स्टेप इज योर पिच डेक. सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि भाई आपने पिच डेक के अंदर क्या लिखा है. ना पिच डेक इज क्वालिटेटिव. टॉप 10 परसेंटाइल में वो लोग जाएंगे जिन्होंने थ्योरेटिकल से निकल के एक्शन में गए. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा आइडिया, जैसे जरमत ने कहा था कि जी वो किचन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है जरमत? यस, क्लाउड किचन. नाउ जस्ट इमेजिन कि जब ये हमें पिच डेक के जब हम इन्हें पिच डेक को एवेलुएट करते हैं जरमत के, तो जरमत ने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मैंने क्लाउड किचन बनाना है, लेकिन जरमत ने कोई एक्शन नहीं लिया विद रिगार्ड टू क्लाउड किचन. then Zarmat cannot be qualified for the round 1. However, अगर Zarmat ने कुछ भी बनाकर अपने क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट में, बेशक वो पार्शली क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन जाके मार्केट में वो प्रोडक्ट को दिया है, उस पूरे प्रोसेस को पहले चीज प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को रन किया है, फिर उस प्रोसेस को जाकर इसने सेल किया है, और बेशक वो प्रोसेस 100% नहीं बनाया है जो उसने कंसीव किया हुआ है. Because by the end of the day, this is the MVP, and there is a whole one session on this कि भाई MVP का मतलब क्या है और how do you design your MVP. So बेशक इनका MVP 1 है, 5 नहीं है MVP, लेकिन even 1 को भी इन्होंने execute किया है, so he will get a better score as compared to the individual जिसने मुझे theoretical MVP बताया हुआ. Over to you, Zain. Is it clear enough? Yes, absolutely, it's clear enough. I do have one question. Sorry, Zain, I would like to add one more thing here. Sorry. अच्छा, यहाँ पर we are a bit so we need to be careful कि कुछ ऐसे MVPs होते हैं जो seed money के बगैर नहीं बनते. So because for example they're technical products, right? So वहाँ पर then we have a room to pass a judgment कि यार इनको mega round में जाने दो because perhaps they need a seed money. तो वो जब तक सीड मनी नहीं आएगा तब तक ये नहीं कर सकते. बट दैट विल बी प्योरली ऑन ऑन अ जजमेंट. सो सेफर बेट इज दैट यू डेवलप योर एमवीपीज एंड यू लॉन्च देम इन व्हाटएवर फॉर्म. ओवर टू यू ज़ैन. सेकंड क्वेश्चन ये है, आई डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्लियर है मुझे फर्स्ट का आंसर. सेकंड ये कि हम आपके पोर्टल पर अपना पिच डेक प्रिपेयर करते हुए कंटेंट लिखते चले जाएंगे, एंड देन यू सेड देयर विल बी अ डाउनलोड बटन वेयर आई कैन डाउनलोड द पिच. ओह यस, ऑफ कोर्स. ये जो पिच डाउनलोड होगी ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगी या वर्ड में होगी? जो लेटर ऑन मुझे जाहिर है उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है, कुछ ऑफ कोर्स. तो एक तो ज़ैन गुड न्यूज़ ये है, एंड लेट मी टेक यू टू द पोर्टल एज वेल.
एंड ये सो ऑफ कोर्स अगर आपको आइडिया नहीं है तो लेट मी टेल यू, ये पोर्टल जो है ये एडटेक वर्क्स का अपना प्रोप्राइटरी है. वी हैव डेवलप्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच, और ये मेरी सजेशंस के ऊपर बना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. So what you are saying, it's very, very important for you to understand. And let me take you to the participant one. क्योंकि आपको ये वाला वर्जन नजर आ रहा है ना, मेरे पास तो सुपरवाइजर वाला वर्जन है. So here we go. So आप इधर हैं इस पर, ठीक है. सॉरी, आपको मैंने पिच डेक में लेके जाना था, बट उसमें मैंने अपने आप को एनरोल नहीं किया. नेवर माइंड, मैं फिर अपने पे आपको बता देती हूँ. तो देखो, मैं आपको पिच डेक में जब लेके गई, क्योंकि पिच डेक में आपने मल्टीपल इटरेशंस करनी है. गाइस, ऑन दिस पोर्टल व्हाटएवर यू राइट वन, सो फॉर एग्जांपल लेट मी डू इट. सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट 1 लिखा, ठीक है. आई सबमिट इट. कैन यू सी एवरीबडी? यस. अच्छा, अब लेट्स अज्यूम कि ये हमारा पहले सेशन में हमने ये आपने सोल्यूशन लिखा, बट याद रखें गाइस, जो अब आज सोल्यूशन सोच रहे हैं, ये 2 months बाद आई कैन हैव अ बेटर सोल्यूशन, विल बी वेरी डिफरेंट, राइट. सो व्हाट वी हैव द ऑप्शन दैट वी हैव कि आप जब दिल चाहें यहाँ पर जाएं, अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करें और उसको सबमिट करें एनी टाइम. दैट्स अप टू, दिस इज योर टूल किट, राइट. दिस पिच डेक इज अ टूल किट फॉर यू. नाउ व्हाटएवर मल्टीपल इटरेशंस यू हैव रिटन ओवर हियर, यू कैन डाउनलोड. जो सवाल था कि जी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखो. कैन यू सी व्हाट आई हैव डन? मेरी जितनी भी यहाँ पर सबमिटेड अटेम्प्ट्स है ना, वो नजर आ रही है. तो मैंने ये टेस्ट 2 जो है सबमिट किया, ठीक है. मैंने टेस्ट 1 एक्चुअली सबमिट नहीं किया, बट लेट मी गो एंड डू इट. एक्चुअली ये इंस्ट्रक्टर का बोर्ड है, इट माइट बी बिट डिफरेंट. परफेक्ट. सो आपकी जितनी भी इटरेशंस होती हैं, जी बोले जैन. What if I want to have a PDF instead of PDF? जी, तो you can download the PDF ना. ये देखो, ये PDF तुम्हारे पास आ गई ना. ये देखो, ये मैंने जो डाउनलोड. If I want to download the Word document, Word docx file. अच्छा देखो, हाँ, नहीं हमारे पास तो हमारे पास डाउनलोडेबल में आपके पास जो है, ये मेरा इंस्ट्रक्टर है तो मेरे पास सिर्फ लेटेस्ट वर्जन आता है. जो स्टूडेंट है उसका सारा वर्जन आता है, जो भी उसने मल्टीपल लिखा होता है. हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में आप ये नहीं कर सकते. हमारे पास PDF है एज ऑफ टुडे. वर्ड का ऑप्शन नहीं है. हाउएवर, उसको जुगाड़ लगाओ यार, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो फाइनल को. डिड यू गेट इट? Yes. I don't like the answer, but I get it. Yeah, you know, you can't get everything. ठीक है. So मैं उसकी वजह बताती हूँ. I'm good to go for the next question. जी, please ask. But let me, so Zain, did we answer your question? Yes. Okay, जी आप पूछें जरा. Miss, how much important is to validate your idea before actually going to market? Let's suppose. Oh my God, this is very important, Zermatt. This is the key. Well, let's suppose, Miss, I specifically want to give an example of my business. Please do. I initiated the idea. I decided my recipe, and now we are going in the market with free samples. Yeah. To validate our idea, is it that we are on the right track? Yeah. जी, बहुत जरूरी है ज़रमत. If you don't do it, you can't move forward. So देखो, 2 चीजें हैं. Let me clarify. एक चीज तो ये है कि जी आप मार्केट में जाते हैं अपना आइडिया लेके और आप उसकी मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, राइट. दैट्स वन थिंग. वी विल डू इट इन दिस कोर्स. वो मार्केटिंग रिसर्च है. आप गए, आपने लोगों को सैंपल दिया, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा वाह ज़रमत, इससे अच्छा खाना तो कभी जिंदगी में नहीं खाया. वेरी गुड. सो दैट इज फर्स्ट वैलिडेशन, राइट. और या वो कहेंगे यार ये किस तरह का खाना बनाते हो, ऐसे नहीं, ये डिशेस बना दो, ये कर, राइट. द सेकेंड स्टेप विच इज द MVP. आप गए, आपने उसको कहा भाई अब ये खरीदो. दैट इज अ लिटमस टेस्ट. और ये वैलिडेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर. दैट इज द क्वेश्चन. यू बेसिकली जब तक वो कहते हैं कि यार तुम्हारा आइडिया बड़ा जबरदस्त है, वेरी गुड, तुमने इतनी मार्केटिंग रिसर्च कर दी है, लोगों ने कहा वाह ज़रमत, यू आर द बेस्ट शेफ इन टाउन. बट जब तुम बेचने गए तो who knows कि कितने खरीदेंगे और कितने नहीं खरीदेंगे. So that is a litmus test, right?
So it's always good. It's always, and therefore this is called MVP. कि आप बेशक छोटा सा ही कुछ क्यों नहीं, बेशक आप 10 डिशेस नहीं लेके जा रहे, एक डिश लेके जा रहे हैं, पर आप वो बेच के दिखाएं, और अगर कोई खरीदता है तो इसका मतलब कि अब आपके कॉन्सेप्ट में जान है. ओवर टू यू ज़रमत. Perfect, done. ठीक है. I'm glad that I'm on the right track. Yeah, this is very important. और guys, मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आज जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म साल पहले ऐसा नहीं दिखता था. So ये वायर फ्रेम का, if you have technical knowledge you would know, वायर फ्रेम बहुत बेसिक होता है जो बैक एंड के लोग बनाते हैं. I took it to the market. एग्जेक्टिव्स को दिखा दिया, मैंने बेच दिया उनको, मैंने वो ट्रेनिंग करा दी इसके ऊपर. You know, I didn't touch paper based training for the last 2 years in any case. ठीक है, तो I became digital completely. और 1 year से तो बिल्कुल भी पेपर नहीं. Now the important thing was the feedback that I was giving, that they were giving to me, actually helped me in developing this whole platform. And even today, you know, I get the feedback and then we go and we tweak it. So this is the way you improve the content. जैसे अगर आप किसी इंडस्ट्री में है, टेक्निकल इंडस्ट्री में है, तो कंटेंट इम्प्रूव करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं. लेकिन गाइस, मुफ्त की चीज में सब लोग कहते हैं अच्छा है. So मुफ्त वाला जो feedback है ना, I consider it a useless feedback, right? When they put money on the product, then they are actually evaluating it. And by the end of the day, we will see whether they like it or not. Any other question, guys, before I move forward? Yeah? Yes, ma'am. So can we? Let me take Humaira's question here. जी हुमैरा, कोई सवाल है आपका? So हुमैरा कह रही हैं कि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ और आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, राइट हुमैरा? राइट. सो हुमैरा कहती है कि देखिए मेरा, जी सॉरी, दोबारा बताएं. ओके, ऑलराइट. सो इंटीरियर डिजाइनिंग है और फैशन है, और हुमैरा कहती है कि आई एम ऑलरेडी डूइंग द बिजनेस, सो हाउ कैन आई गेट. सो सी, तो होता ये है, एक तो लर्निंग बेटा कभी खत्म नहीं होती, दैट इज फॉर श्योर. मैंने जब अपने आप को इंक्यूबेट किया था, अगर आपने मुझे रिसर्च किया है, सो 2017 दिसंबर में आई इंक्यूबेटेड माई सेल्फ इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर, and I was like professor at LUMS. Can you believe it? I was teaching MBAs and I was teaching entrepreneurship. And my colleagues were literally laughing at me, Dr. Farah, are you kidding with us? You are going in an incubation center. इसी तरह की ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैं आपको आज बेसिकली ये वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर में. So, and I was going in the physical space and everybody was saying, are you kidding? So मैंने कहा नहीं, because इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि एक स्टेप में स्पेशली जब आप स्टक हो जाते हैं तो फिर आपको अनलर्न करके रीलर्न करना होता है. हुमैरा, इफ यू थिंक कि आपका स्केल जितना आप कर सकती थी आप कर बैठी हैं, यू नो, व्हाटएवर नॉलेज यू हैड, यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड इट. नाउ यू नीड टू नो समथिंग एल्स टू मूव फॉरवर्ड. सो वहां पर फिर आप जैसे लोगों के लिए क्या होता है, एक तो आपको टफ टाइम देना चाहिए क्लास को, बिकॉज यू हैव मोर नॉलेज, you know, so you can bring your knowledge, but you can get tested your product while sitting in the classroom as well. क्योंकि आप क्लास में जो पार्टिसिपेट करेंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ अपना वर्ल्ड व्यू देंगे. आई विल ऑल्सो शेयर, whoever will allow me, कि जी इन्होंने ये सोल्यूशन बनाया है, इन्होंने ये प्रॉब्लम बनाई है. तो फॉर एग्जाम्पल ज़रमत जो है, अब ज़रमत कोई भी अगर चीज करते हैं तो इफ ही अलाउज तो हम क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं. यू गाइस कैन गिव द फीडबैक, सो यू आर नॉट ओनली गेटिंग द फीडबैक ऑफ डॉक्टर फराह, but actually you're also getting the feedback of the other participants, and that's very helpful. So the knowledge that you need to scale it up, I think you will be able to get it from here. And even I had formal education in entrepreneurship. I still went out, I sat with literally the kids जो मुझसे 20 साल छोटे थे, but I learned so much from them. So I think एक entrepreneurship की key है ना, wherever you go, you do two things. A, you keep your eyes, ears open, right, so that you can grasp new knowledge, new ideas. And the second thing is, wherever you go, you get the validation of your idea. Are we on the same wavelength everywhere? ठीक है? So आपको तो एक अपॉर्चुनिटी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. You to be very honest, people say, डॉक्टर बना आप सारा वक्त एडटेक वर्क्स को प्रमोट करती हैं, तो भाई किसको प्रमोट करूं? Obviously मैंने एडटेक वर्क्स को ही प्रमोट करना है, because you see that is the product, right? So I should be living it. I should be, वो जो कहते हैं ना, live it, breathe it.
That has to be the attitude of an entrepreneur, right? And if you don't have that kind of an attitude, you can't take it forward. Let me tell you, you simply cannot take it forward. Gee, so are we good? Any other questions, guys? Yes, Dr. One question from my side. पूछे. मुझे एक तो ये बताइएगा कि we are all coming up with individual ideas, right? For the MVPs, right? Is that correct understanding? बिल्कुल. Creating the groups. जब आप कहती हैं कि जी मैं ग्रुप्स के अंदर आप जी मैं बता देती हूँ. बिल्कुल. या सो जब मैंने कहा ना कि मैं ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी, दैट इज फॉर द क्लास discussion. That is for learning purposes only. When you go to the, and let me take you there. So when you go here, आपका जब pitch deck में आप जाएंगे तो वहां पे आप अपने individual capacity में काम कर रहे होंगे. However, there will be some startups जहां पे जिनके group members भी हैं. Now, they might not be joining us. It's perfectly all right. But it's not very expensive, and you will have the access for the whole 1 year. बेशक आप blended में ना आए, blended में आपके दूसरे partners बेशक ना आए, because it's a bit expensive, I understand. But I would strongly recommend that you get enrolled. When you qualify for startup pitch deck, because startup pitch deck के लिए आपको qualify होना है. जो बैठे हुए हैं 24/7 वाले, they have to be in 90, top 10 percentile. जो भी उनकी evaluation होगी, right? So वो अगर वो आ जाते हैं top 10 में, तो उसके बाद ये जो pitch deck उनको मिलेगा, so they can also ask their members to join us. तो वो एक खुशी होगी pitch deck की, वो आपको देनी होगी. My team would know better, and then you will have your members also part of your pitch deck, because आप इस platform को फिर multiple teams के साथ use कर सकते हैं. So अभी क्लैरिटी है कि जब मैं हमारे सेशंस के लिए जब मैं टीम्स बनाऊंगी ब्लेंडेड लर्निंग में, so वो टीम्स का मतलब है कि this knowledge development that we are having in this particular session, it has nothing to do with your pitch deck, because pitch deck is your startup, right? तो औरों को तो वो देखना भी नहीं है unless आपकी परमिशन नहीं है, ठीक है? तो क्लास में भी I will not discuss it unless you give me the permission to discuss it in the class. And that is like your private data, which is lying with us. It's our responsibility to safeguard. Yes. Over to you. Over to you. For the 24/7, that is self-paced learning. Yeah. हम अपने तौर के ऊपर कोर्स को पढ़ेंगे. Assessment इसी तरह से होगी जिस तरह बाकी सब की है. और फिर you decide the percentile जो भी उसके अंदर top 10% होगा. So they will be on जिनकी MVPs जो होंगे further. No, जो टॉप 10 नहीं, उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लें कोमल. जब आपका टॉप 10 परसेंटाइल में आप असेसमेंट में आ जाएंगे ना, then we will give you the access of this pitch deck. ठीक है. अच्छा, मतलब उससे पहले कोर्स को क्लियर करके पहले, yeah, exactly, because I don't have. ठीक है. जी, because that is, yeah. So because that is one of the major differences between, other than my intervention, major differences between your online and the blended learning, right? So the value that the blended learning is having, otherwise there's like not much value, because मेरे sessions gradually online भी आना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को मिलेंगे 24/7. But the real value that I'm trying to create here, with our time, कि आप लोग अपने pitch deck simultaneously develop करेंगे. जी. तो आपको 24/7 को तब मिलेगा जब आप अपने टॉप 10 परसेंटाइल में आ जाएंगे. वो एक मेरी टीम ने कोई क्राइटेरिया भी एक डिफाइन किया हुआ है 24/7 के लिए. So then you will get this pitch deck, and then we will move forward, everybody, because ये pitch deck में फिर सब लोग आ जाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको बताती हूँ कि pitch deck में किसी का नाम है, राइट? तो नेक्स्ट सेशन में जो मेरे ब्लेंडेड लर्निंग वाले हैं उनके नाम आ जाएंगे, और फिर जब 24/7 वाले इसमें क्वालिफाई करेंगे तो उनके नाम आ जाएंगे. जी. Any other question, guys? No, I think we're good. Yeah, good to go. So can I move back to my session actually? क्योंकि अभी तो हम थोड़ा comfortable हो रहे थे, and these questions are very important. अगर किसी का और कोई सवाल नहीं है, so मैं फिर अपने session के अंदर जा रही हूँ. So guys, the motivation behind developing this whole one session on introduction to entrepreneurship is कि लोगों को ना बहुत गलत फहमी होती है. लोगों का ख्याल होता है कि entrepreneurship ना is a piece of cake,
बस हमारे पास आइडिया है और ये आइडिया हम लेके जाएंगे और बस हम छा जाएंगे, और ऐसा नहीं होता है. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. So we need to see whether we have those ingredients or not, and then of course you need a strategy. So आज का जो session है, that is more of the self reflection and finding out what weaknesses do we have as an entrepreneur, so that we can further improve upon those weaknesses, right? So कुछ चीजें हैं जो हमने best of the best entrepreneurs से learn की हैं, research based हैं, हमारी observations हैं. तो हम आज उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि do we have those ingredients or not, because that is something which is very very important. So as you can see on this slide, so entrepreneurship का journey जो है वो तो बहुत पुराना है. किसी ने मुझसे सवाल पूछा, डॉक्टर फरा, you haven't included Islam in this particular course in written form, and I agree with them. Yes, sorry मैंने नहीं डाला, but as but whenever I talk about it, and actually I will send you guys, a blog which I have written on Islam and entrepreneurship, and it is so important actually to understand कि कितनी ज़्यादा जो है वो value है इस्लाम में entrepreneurship की, and of course और वो आप देखेंगे, and I will share that with you, and how I will added the concept of zakat and entrepreneurship and overall Islam का, तो वो मैं I'll share that with you. So being a Muslim, मुझे लगता है कि value creation का जो rule number 1 है वो entrepreneurship है. Now moving forward, अब इस particular session के जो learning outcomes हैं वो बड़े important. So हम थोड़ी सी definitions देखेंगे entrepreneurship की, और वो definitions देखते वक्त मेरी request है आपसे कि आप ये देखें कि आपकी entrepreneurship की definition क्या है, because that's what I'm going to ask you. What is your definition of entrepreneurship? Now, I really would like to know how do you see entrepreneurship, and then I will also talk about it that there is a thinking which is called entrepreneurial thinking, and that is again very important. एक बंदा जो नौकरी कर रहा है और एक बंदा जो एक बेसिक नौकरी कर रहा है और एक स्ट्रेटेजिक नौकरी कर रहा है, और फिर एक शख्स जो कि एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसकी थिंकिंग में they are poles apart. बहुत फर्क है दोनों की थिंकिंग में. So you also need to assess whether you have that kind of thinking or not, and if you have, thumbs up to you. But if you don't have, you need to then develop that thinking. Otherwise, you will be in trouble. Then there is a concept which is called effectuation. Now, this concept is very, very important. और वो क्या concept है, आज हम उसको discuss करेंगे, उसको explore करेंगे. In my humble opinion, if you don't know the process of effectuation, you are losing upon a big opportunity out there. And so this is very important to understand what is this process of effectuation, and then I will ask you guys how you are going to use this process of effectuation, because हर शख्स अपने अपने तरीके से ये process जो है वो use करेगा. I will also give you my example. How did I use this process of effectuation? Once we are done with this, then I will jump on the mindset and the personality. Guys, if you don't have that kind of mindset, if you don't have that kind of personality, then evolve. देखिए, पर्सनालिटी ऑल्दो कि मुश्किल से वो बनाई जाती है, लेकिन बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है. आपने देखा है कुछ लोग बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली they do some conscious effort and they become not extrovert, but they become a bit more people person, which is the need. And entrepreneurship का मेरा अपना एक इसमें एक पॉइंट है, मैं बाद में आपको बताऊंगी. मेरा एक अपना एक एंगल है कि किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की. Now, then we will do some real life examples. इसमें मैंने केस स्टडी जेडी पानवाले का जिक्र किया था, and I would like to do that exercise with you. I will also ask you कि आपको कौन सा एंटरप्रेन्योर जो है वो अट्रैक्ट करता है, and then we will quickly discuss that, and then we will decide कि भाई अब अगर आप में कोई weaknesses हैं तो क्या weaknesses हैं. यहाँ पर I would like to take this opportunity and I would like to work with individuals. आप देख रहे हैं, मैं आज हुमैरा को कहूंगी कि हुमैरा तुम मुझे भेजो कि तुम्हारे ख्याल में कौन सी तुम्हारी weaknesses हैं, so
so that I can work with her, so that I can make her more entrepreneurial, you know, not in the context of कि हुमैरा ने कोई knowledge gain करना है, उसने अपने आप को भी change करना है. My wish list is that after the journey of this 2 months with me, you should find out, you know, some drastic changes in you. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ because when I started my entrepreneurial journey, I found some drastic changes in me, and I assure you, people have to change. Actually, nobody is perfect in any case, but you have to bring some, you know, some changes in you. So my goal is, my real goal is कि आपकी, मैंने सिर्फ ये नहीं आपको हेल्प करना कि आपने आगे आकर किस तरह से, जी कोमल मैं आ रही हूँ आपके पास, कि किस तरह से आपने अपने पिच डेक बनानी है. आपका पिच डेक would become least effective if you yourself is not you know of an entrepreneurial mindset. जी कोमल पूछिए सवाल. जी डॉक्टर, एक तो थैंक यू फॉर यू नो ये जो अभी आपने डिस्कशन किया, ये कुछ सवाल आते जो मैं काफी अर्से से पूछना चाह रही थी. How would I know that I am a right person to you know take a entrepreneur's journey? Do I have enough, you know, skills and prerequisites to be calling myself or having confidence कि जी मैं आज एक आइडिया लेके चलती हूँ और मैं उसको लेके चलूंगी, उसको अचीव कर लूंगी. ये हमेशा से मुझे वर्क करता है. I've spent a lot of time working, you already know that. तो मैं 15 साल से एक ही तरह का काम कर रही हूँ. ठीक है. बड़ा एंजॉय करके कर रही हूँ. ठीक है, टेक्निकल फील्ड है तो उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करते हैं, मगर there are times when you really want to you know understand. मैं इस टाइम पे कोर्स क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं वाकई सीखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ what is entrepreneurship. ठीक है, और क्या मेरे अंदर वो वाले स्किल्स या वो वाली पर्सनालिटी है where I can say if I bring an idea, it is worthwhile and I can take it about और वो एक सक्सेस बनेगा. ठीक है, तो ये वाली कुछ चीजें हैं जो कि मैं वाकई सीखने के लिए इस टाइम पे I know I have a very you know critical timeline going on with the project and all everything. इसीलिए फिर मैं सेल्फ पेस में चली गई कि मुझे पता होना चाहिए. तो ये चीजें भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या प्रीरेक्विजिट्स होते हैं? How would I know if I have the right personality? ये आज के सेशन का आउटकम है. ये आज के सेशन का आउटकम है. आज के सेशन में हमने डिस्कशन ही इस पे आके खत्म करनी है कि do you have this or not, and if you don't have, then how you gonna bring it in your personality? Yeah, otherwise you won't say if you don't have तो आप जाए. मैंने नहीं कहना. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ब्लेंडेड वाले हैं वो तो 2 महीने की मेंटरिंग इन एनी केस ले ही रहे हैं. तो वो तो जैसे मैंने कहा कि वो हुमैरा का मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है ना ऑलरेडी, बिकॉज़ शी इज वन ऑफ माय प्लेयर्स. तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो वो तो उसको तो मैंने कहना ही, बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. मुझे ये लगता है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई होती है. ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके प्लसेस क्या हैं और आपके माइनसेस क्या हैं, सो दैट you get the full benefit of your pluses and you improve upon your negatives. And there is a constant learning going on. Any other question, Komal? नहीं, I think मेरा mainly यही था कि मैं जानना चाह रही थी कि देखिए कोई भी इंसान होता है उसको कैसे पता लगेगा I am the right. You will get an answer today, Komal, if you stay here. I don't know whether you can stay or not, but you will. Yeah, okay. Because 11:30 onwards जो है ना उस discussion ही सारी इधर है. बस ये फिर आज मैं आपके साथ गुजारती हूँ. Perfect. Over to Zain and जी. Over to other guys. जी. Zain and Zerman. जी. Well, as of now, I do not have any question. I am absorbing the information. All right. जी Zerman. Perfect, ma'am. Good to go. Okay, so let's move forward. So ये अब आपको बड़ा clear है और मैंने chapter preview आपको already दे दिया है. So let's talk about the definition. और आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, and of course you have the access of this as well. So यहाँ पर ये पहला सेंटेंस अगर काइंडली हम इस पे फोकस कर सकें. An entrepreneur is someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. Who will explain it to me?
So मैं cold call भी दे सकती हूँ. Zain, can you explain it to me? Well, at least I can try. It's Do it. Yeah. It's completely uncertain. That's number one. The constant thing is that there is uncertainty. Okay. So you need to build your MVP, validate it, and get it validated from the customer base, and just keep on improving it by sprint, and the time will gonna come and you will be ready to go. But ये चीज जरूरी है समझना कि आपकी जान को आया हुआ है कि भाई आपने करना ही करना है. There shouldn't be any second thought. Yes, as far as the MVP concept is concerned, the perceive and pivot वाला वो concept तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन should I actually end up this entrepreneurship thing और क्या मुझे job की तरफ निकल जाना चाहिए, तो वो mindset आपका नहीं होना चाहिए. Okay, all right. जी, all right. ठीक. Zermatt, do you want to add anything here? No, ma'am. Thank you. Okay. Ji, Komal, would you like to add anything here? I think what immediately came to my mind after reading this line is that you just take the risk. If you're excited about, taking up an idea and making it something real, so you take the risk, calculated one, and then you go about making it a viable product eventually. तो उसके अंदर फिर आपको रिस्क लेना, ये नहीं बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव होके चलेंगे तो शायद आप पहला कदम भी नहीं उठा पाएंगे. Okay, all right, so cool. Once you take the first step, फिर आपके खुद आप इसको लेके आगे चलने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. So guys, when I read the statement, so an entrepreneur is someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. I think whatever you have added is a perfect answer. के अपना पिवट करता रहे, कस्टमर का फीडबैक लेता रहे, उसको रिस्क लेना होगा, अनसर्टेनिटी होगी. लेकिन एक चीज जो है ना, वो आप में से किसी ने ये बताई नहीं है कि ये गैम्बल नहीं किया है इसने. एक्चुअली इसके पास कैपेसिटी. And you see what I'm talking about? Now that is something which I call a missing link. Now people get excited, they go in the market, they start learning from the market, वो पिवट भी करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक चीज जो वो भूल जाते हैं, do they have the capacity to do it? Of course, there's a lot of stuff that you develop as you move on, but you have to have the capacity to take the first step towards this jump. Now that is something which we call the preparation. Preparation is the key. And today when we are sitting over here, we are heading towards that preparation. आपने सवाल पूछा था डॉक्टर फरा क्या करना है? प्रिपेयर करें अपने आप को to take the first jump, ठीक है, of your life or the first step, towards your career, a new career, which is an entrepreneur का career. So guys, मेरे लिए बहुत important है ये capacity. So thank you for pitching in and let's move on. अब यहाँ पर different हमने यहाँ पे चीजें उठाई हैं और मैं वो आप सबको invite करूंगी one by one के आपने इसमें से क्या पकड़ा. तो जेमी टाडी कहती हैं an entrepreneur is someone that goes out and does the work to create something that didn't exist before. Now मैं सवाल अब पूछने लगी हूँ जरमत से. जरमत जो है वो क्लाउड किचन ला रहे हैं. जरमत is already existing. So what different are you gonna do it? If I have to compare the cloud kitchen market between Pakistan and India, तो in Pakistan अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है. But मैं जरमत इधर ही रोकती हूँ. So Zermatt didn't pick up the जिसको हम बोलते हैं Me Too product, right? Zermatt said that there is a market out there which I know कि मैं उसको tap कर सकता हूँ with a model which is existing somewhere else. But this is not Me Too. You understand Me Too, everybody. Me Too का मतलब, so for example, हर कोई जो है वो कपड़े सी के बेचना शुरू कर दे, हर कोई दर्जी बन जाए. That's a Me Too thing, right? Now you can become a tailor. What is something which actually is needed, by the market and which is missing? So that doesn't exist, but there is a market for it. So guys, जब भी आप अपने आइडिया को रिफाइन करेंगे या उसको उस बारे में सोचेंगे, आपको ये बात लेकर आनी है. Now a person, next पे जा रही हूँ, a person who solves problems for people at a profit. Now what is the insight here? So for example, मैं कोमल से सवाल ये पूछती हूँ. कोमल, whatever idea you have,
Is it a profitable idea? वो problem solve करेगा, but it has to be a profitable idea. Is it a profitable idea? Whatever you have in your mind. So I have an idea, ठीक है, and I've actually worked on it recently. Okay. Our company's innovation jam kind of a thing. ठीक है. So it's a commercial product, right? और ज़ाहिर existing हमें पता है कोविड सिचुएशन के अंदर किस तरह से चीज़ें सब चेंज हुई हैं, ठीक है. तो we made a pitch और उसके अंदर ये है कि जो existing ही आपकी given situation है उसको मज़ीद improve किस तरह किया जा सकता है. Yeah. To make things more accessible. Right. So it could be a same thing, but now you're pitching in something more proactive, more useful, and the same idea. My ideology of entrepreneurship could be that it might be an absolutely new thing altogether. Existing को उठाइए और उसके अंदर improvement लेके आइए. Right. So यार देखिए जो हमारी trajectory चल रही है ना, हमने पहले कहा था कि यार कुछ ऐसी चीज जो पहले exist नहीं करती है. Okay, fine. However, बहुत सी चीजें हैं जो exist करती हैं, fair enough, but they should be solving the real problem. And at times I use this word killing problem. वो killing problem कोई solve कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है. वो फिर ultimate $1 billion company बनती है. ठीक है, we all are searching for it, including myself, right? तो एक ऐसी चीज, एक problem solve करें ना. Imagine करें कि एक ऐसा product service आपने दी कि अगर अल्लाह ना करे वो बंद हो जाए तो लोग उसको ढूंढना शुरू कर दे. Can you create this kind of a product and service, guys? That is the ultimate goal. कि एक ऐसी सर्विस, एक ऐसा प्रोडक्ट जब मैं बंद कर दूं लोग उसको ढूंढना शुरू कर दें. Now, if that is the problem, if that is the level of problem solving, then of course you are making good money, right? Okay, so let's move on. Someone who makes something useful or pleasurable out of nothing. Now, इसमें कौन सा नया tweak आया है, अली? Sorry, Zain, not Ali. जी Zain. Sorry, I didn't get the question. जी. अब हमारा जो next definition है ना, it says someone who makes something useful or pleasurable out of nothing. So a नई चीज क्या add हुई अब इस definition में? Cannot connect. I don't know, to be honest. Okay, so यहाँ पे ना एक pleasure का लफ्ज आया है, guys. So आप solution दे रहे हैं, वो एक process है, product है या service है, जो big ideas हमने दुनिया में देखे हैं, उसमें एक level of pleasure भी होता है. आपको वो मैं कहती हूँ हैशटैग मजा आना चाहिए. आप दुनिया में कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस दें, क्या अगले बंदे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है, आपको मजा भी आ रहा है. एक तो मजा क्या चीज होती है? एक होती है आपकी एक्सट्रिंसिक नीड. एक्सट्रिंसिक नीड इज सोल्यूशन ओरिएंटेशन, राइट? अब सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है. मुझे ये प्रॉब्लम थी, आपने सॉल्व कर दी, गुड, मेरी एक्सट्रिंसिक नीड खत्म होगी. एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक नीड. इंट्रिंसिक नीड में होता है मजा आ रहा है. आप मेरे पास सेशन में आए, आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन पता चली, आपने कुछ मसले सॉल्व कर दिए, वेरी गुड. लेकिन ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, ठीक है. इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है कि आपको मजा भी साथ साथ आ रहा था, आप इंजॉय कर रहे थे, ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था. नाउ दैट प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एक्चुअली मेक्स यू द नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप और नेक्स्ट लेवल बिजनेस. आर यू विद मी एवरीबॉडी? इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? हाउ? सो द फोकस इज यार मेरे कस्टमर को, मुझे उर्दू का लफ्ज बहुत अच्छा लगता है, मजा आना चाहिए. वी ऑल रिलेट टू इट, राइट? हर चीज में मजा नहीं आता, कम चीजें होती हैं जिसमें मजा आता है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी कैन सी हियर, इट्स अ बिट लॉन्ग डेफिनेशन, लेकिन इसमें जो मुझे जो अच्छी चीज नजर आती है, मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ. द एंटरप्रेन्योर कैन वर्क अलोन विद इन अ कंपनी और इन अ ग्रुप, but he or she gets itchy at the thought of working a 9-to-5 job and following the orders of anyone who isn't efficient and imaginative. Now guys, a real entrepreneur की जो उसका जो fodder है ना, उसका जो खाना है ना, वो efficiency है और imaginative होना है. which एक और लफ्ज इसमें लगाएं तो innovative. वो बिकॉज उसकी जो इमेजिनेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं. मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप कहीं पे भी जाएं आपके दो ही काम हैं. कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन टू लर्न मोर थिंग्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन. वो आप क्या कर रहे होते हैं? लोग बात कर रहे होते हैं, आप इमेजिन कर रहे होते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? Yeah, absolutely.
Now this is something. Right now I'm doing this, imagining. Yeah, exactly. Good. You are an entrepreneur, my friend. Congratulations. So this actually you are connecting the dots with. Ma'am, actually you are connecting the dots with your personal exposure. You said a pleasurable out of nothing. I'll give you an example, but at the end of the entrepreneurship. Okay. All right. Cool. So guys, this is something which is very very. लेकिन ये देखो मेरे लिए तो ये efficient का लफ्ज़ इतना important है. You see, you get worked by people who are inefficient. Am I right? Yes, right. You simply cannot. I don't want to see people who have slacked in their life. Sorry, you should not be within my close distance. No, I don't want you around. और उसकी वजह ये है कि ऐसे लोग जो efficient नहीं होते, वो आपकी imagination skills को kill करते हैं, क्योंकि वो आपको stupid किस्म की जो menial किस्म की जो चीजें होती हैं उसमें वो आपको उलझाते रहते हैं. So they waste your time and you don't want to do it. All right, let's move forward. Now, an entrepreneur is someone who has a bias towards action. Guys, action. Now that is something. मैंने आज पहले दिन ही आपको कहा बेटे ये पिच डेक है, इस पर काम करना शुरू कर दो. मैंने 2 महीने के बाद नहीं देनी. Right? Now this is something. So we are very much action-oriented people. We hate those people who don't believe in action. So एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग है मेरा अपना जो जर्नी है. सो मैं प्रोफेसर हूँ. प्रोफेसर ना तो 1000 दफा सोचता है फिर कुछ काम करता है. एंड आई हैड ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद दिस एटीट्यूड. मैं पहले एंड यू सी कभी कभी हमारे बारे में कहा जाता है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ये काम पहले करते हैं सोचते बाद में. एंड देयर इज नो शेम इन इट. एट लीस्ट आई डोंट आई फाइंड इट एज पर द वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. बट मैं ये नहीं कह रही कि वो आप जाके गैम्बल शुरू कर दें या बहुत ही ऐसी चीजें करें जिसमें बाद में आपको फिर अफसोस हो और रिफ्लेक्ट आप करें. सो देयरफॉर आई हैव सेड यू नीड टू डेवलप योर कैपेसिटी. सो वंस यू हैव योर कैपेसिटी देन योर स्किल सेट इतने वो इम्प्रूव हो जाते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, आप जल्दी से एक्शन करते हैं. आपको पता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको मार्केटिंग रिसर्च बहुत अच्छी नहीं लगती. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? What is the reason behind? You should actually know the psyche of their customers. उनको मार्केटिंग रिसर्च इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च ने कंप्लीट होना था 3 महीनों में. समझे? They believe in quick and dirty feedback and they move on. And ये आपको वो बंदा कह रहा है जिसने सारी उम्र मार्केटिंग रिसर्च पढ़ाई है at a very high level. So the course that I taught in LUMS and which I still teach, it is called consumer analytics. So I teach MBAs. कंज्यूमर एनालिटिक्स. वो बंदा आपको कह रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर जो है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो पहले एक लंबी मार्केटिंग रिसर्च करे और फिर जाके वो अपना प्लान बनाए. नो, they do go in the field, they get the quick data, they analyze it and they do the action. Right? So someone who views the world through a different lens. 2 चीजें मैं आपके सामने रखूंगी. एंटरप्रेन्योर को उसमें कोई तीसरी चीज नजर आ रही है. This is the way we are. Someone who takes no for a challenge, not an answer. Yes, बहुत important है. ये मतलब नहीं हो सकता कि मैंने आपको कहा कि ये करना है और आपने कहा ये नहीं हो सकता. No, everything is possible. Not possible is not in your dictionary, right? So guys, बहुत सी चीजें तो अभी हमने देखना शुरू कर दी. अब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें कि ये चीजें आपके अंदर हैं या नहीं है. अगर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं है तो उनको बनाना शुरू कर दें. बिकॉज अनलेस यू डोंट हैव इट, आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते. Then the question. One question is कि as far as the word capacity is concerned, I wanted to actually to know if I'm moving towards the right direction. It means कि let's say मैं being a technical background, कोई एक product मेरे ज़हन में आई, the capacity, the first thing, the capacity will going to come in कि यार let's say मुझे 4 technology सीखनी है in order to actually make it work. So is this, am I moving towards the right direction as far as the capacity concept is concerned? No, but that is half of the capacity. So what you are talking about is a technical thing. Now I am talking about the business thing. Like business due diligence करना जरूरी है कि whether the gap exists. Business के core को सीखना जरूरी है.
इसीलिए not getting it. मैं बताती हूँ exactly, मैं आपको बताती हूँ सो आपके ख्याल में स्टीव जॉब जो था वो टेकी था या उसका बिजनेस एक्यूमेन हाई था? एक्चुअली वो दोनों था. अब उसका स्टीव जॉब की लास्ट डिग्री क्या है मुझे खबर था? नहीं, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है, ड्रॉप आउट है. राइट, व्हिच मींस व्हाट? उसने सारा कुछ खुद सीखा है, राइट? तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है. बाय द वे स्टीव जॉब के, कोमल प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्टीव जॉब को कहा जाता है वो टेकी नहीं था, वो टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा था बैठ के, वो डिजाइन कर रहा था. उसके बिजनेस एक्यूमेन बहुत हाई था. He had a vision, right? विजन तो था, उसका बिजनेस एक्यूमेन बहुत हाई था ना. वो कैपेसिटी है जो उसने डेवलप की थी. आपको पता है मैं आजकल यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं. तो अक्सर मुझे लोग जो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं जी हमने ना देखें हम तो इस तरह से इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते. आपने देखा है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उन्होंने तो अपनी डिग्रीज भी नहीं की होती हैं. एंड आई जस्ट एज ए वाई कूल यार, वो इतने विजनरी होते हैं और वो इतने जो कुछ हैं जो आपको नजर आते हैं. बाय द वे बाकी बहुत से हैं जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन लेके वो जंप इन किए हैं, बट दे आर वेरी फ्यू सक्सेसफुल जो आपको नजर आते हैं, जो जिसको कॉलेज ड्रॉप आउट आप बोलते हैं. ठीक है, दे आर वेरी फ्यू, बट वो इतने इंटेलिजेंट थे, वो इतने सुपर इंटेलिजेंट थे कि उनको क्लासरूम बोरिंग लगती थी. बिकॉज दे वर सो इमेजिनेटिव, दे वांटेड टू डू समथिंग एंड दे वांटेड टू डू इट इमीडिएटली बिकॉज एंटरप्रेन्योर एक्शन ओरिएंटेड. अभी रिसेंटली मैंने काम किया है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, ये टेफ्टा है. Now what I have found out that TEFTA students can become better entrepreneurs as compared to MBA or the students who go for MBA. Can you see the issue there? So वो जो तो कैपेसिटी में वेरी क्विकली, लेकिन यही टेफ्टा के बच्चों को आप कह दें कि तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है लेकिन वो बिजनेसेस नहीं खड़े कर सकते, वो स्टार्टअप नहीं खड़े कर सकते. क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस एक्यूमेन चाहिए. अच्छा, व्हेन आई से बिजनेस एक्यूमेन, तो ऑफ कोर्स जो बेसिक चीज है जो जिस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया था, तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि डॉक्टर फरा एक एंटरप्रेन्योर को क्या कैपेसिटी चाहिए, तो मैं कहूंगी भाई उसको कम से कम ABC ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पता होनी चाहिए, राइट? एंड मैं थियरी की बात नहीं कर रही, मैं टूल्स की बात कर रही हूँ. ये हमने सीखा है विद पैसेज ऑफ टाइम कि अगर वाई, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वाई इनक्यूबेटर? नो, आई डोंट नो. Okay, Y Incubator is a silicon-based incubation center. It is the world's most renowned place, right? जितने भी, okay, not जितने भी, but most of the unicorns they have gone there. ठीक है? And that's a very early stage concept. बहुत साल पहले, of course, तो Silicon Valley का जब boom आया तो उसके साथ Y Incubator जो है वो बना है. उसको आप सर्च करके जरूर देखिएगा. So वो कैपेसिटी डेवलप करते हैं. So going back to Zen, जो आपका सवाल था ना डॉक्टर फरा, आपकी कैपेसिटी से मुराद क्या है? देखिए, आपके पास शायद टेक्निकल नॉलेज हो, नहीं है तो टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए, दैट्स पार्ट ऑफ द कैपेसिटी. बट हम जब एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, विच मीन्स व्हाट, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस बना के उसको मार्केट करेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे तो यही करना है ना. उस जर्नी की कैपेसिटी आपके पास है या नहीं है, दैट्स व्हाट आई मेंट बाय. I hope then I've given you an answer. And if it's still not clear, by the end of the session, you have to ask me this question again. Dr. Vera, what do you mean by this? Right? Yeah. But before we move forward, I'll take you back. Is screen cube. So let me quickly talk about this because ये मेरे ख्याल में ये capacity की basic rule है जो आपके पास होना चाहिए as an entrepreneur, right? तो आज तो हम अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, देन कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू अपॉर्चुनिटी. आइडिया तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये अपॉर्चुनिटी भी है कि नहीं है, उसकी पूरी साइंस है. दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कैपेसिटी. फिर ये देखें ये फिजिबल भी है कि नहीं है. बहुत से ऐसे आइडियाज होते हैं जो आपको ऑन ग्राउंड मतलब ऑन पेपर लग रहे होते हैं जबरदस्त है, उनमें कुछ एलिमेंट्स भी ऐसे होते हैं, बट वी हैव टू थिंक थ्रू इट वेरी वाइजली. तो वो पूरा एक फिजिबिलिटी एनालिसिस आपको करना चाहिए. That is your capacity. Then how to design an innovative value proposition. Once you know कि हाँ ये opportunity बन सकती है, ये feasible idea है, तो फिर आपको refine करना होता है value proposition को. You know what, by the end of the day, you know I'm giving to my customer. However, हर चीज दुनिया में copy हो जाती है. आप कैसे copy होने से बचाएंगे आपके ख्याल में? Any idea? जब तक आप
जब तक आप इनोवेट, नो, कॉपीराइट कैन नॉट सॉल्व द होल प्रॉब्लम. इनोवेशन, कीप ऑन इनोवेटिंग. At least start somewhere, right? Don't wait too long for your idea to nourish and. But that is fine. वो MVP की साइंस है जो इधर आती है. Lean starter model, ये MVP है. तो लीन स्टार्टर मॉडल जो है, दिस इज MVP, बाय इनक्यूबेटर मॉडल है, एंड दिस इज MVP. ये जो आप बात कर रही हैं, वेट मत करें, ये जो मतलब है ना वैल्यू प्रोपोजिशन, अभी तो ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है ना, ये एक्शन है. कॉन्सेप्चुअल में ये है कि आपने वैल्यू ऐड करते जाना है, उसमें इनोवेट करते जाना है, स्टैटिक नहीं होना. यू कांट अफोर्ड दिस. और वजह क्या है, बाय द वे, व्हाई आई एम सेइंग कीप ऑन इनोवेटिंग. उसको इनोवेशन को, इनोवेटिव वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ही यही है, यू कीप ऑन इनोवेटिंग, राइट. ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें बहुत बड़ी वजह है जिसका ताल्लुक पैसों से है, और पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. एनी आइडिया व्हाई आई एम सेइंग कीप ऑन इनोवेटिंग, जिसका ताल्लुक पैसों से है? व्हाई? यू बीट योर कंपटीशन. एग्जैक्टली, एक बात तो ये है. और i3 के बाद अगर आप i4 लेकर आएंगे, i7 या i8 लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर दोबारा खरीदेगा उसको. Yeah, recurring revenue. Exactly. So what are you doing? You're beating your competition. You are having recurring revenue by engaging your customer again, get again. Right? Now this is something which is very, very, very important. And people don't understand it. वो एक product बना के उसको कहते हैं 100 साल चलाएंगे. Those days are dead and gone. अब ऐसा नहीं होएगा. आपको पता है अब एक बिजनेस की जो एवरेज लाइफ है वो क्या है इस वक्त? नॉट मोर देन 2 decades. बिजनेस कम एंड दे डाई. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो देन वी हैव दिस लीन स्टार्टर मॉडल. ये जो अभी कोमल बात कर रही थी, भाई डोंट स्लीप ओवर इट फॉर years and years. If you have an idea, then follow this model and get it done, right? Then we have this business model canvas. Now this is literally a canvas जहाँ पे आप पहली पिक्चर बनाते हैं अपने बिजनेस मॉडल. वो क्या है उसको हम डिटेल में बात करेंगे, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग गाइस, इट हैज बीन माय मिसिंग लिंक एज वेल, बिकॉज हम एंटरप्रेन्योर्स इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, हम ऑपरेशंस में इतने चले जाते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भूल जाती है. एम आई राइट हुमैरा? It has been my missing link, believe me. अभी मैंने MBA किया हुआ है, मैं PhD हूँ बिजनेस में, पढ़ाती हूँ बिजनेस में. It has been my missing link. So I'm still struggling with it. But so this is something that you should know and start bringing it into your operations as soon as possible. And in the end, I will wrap it up with those tips कि जिसको हमने बोला marketing essentials, right? कि किस तरह से फिर आपने इंगेज करना है. अब सब कुछ बना लिया, मॉडल बना लिया, उसकी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी चेक कर ली. अच्छा, अब क्या करना है? अब तो काम कस्टमर के पास जाना रहेगा ना. कस्टमर के पास जाएं और उसके पास जाते रहें, उसको कैसे आपने इंगेज करके रखना है, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है. तो लेट्स से हुमैरा के आज कस्टमर जो है वो 500 कस्टमर है. हुमैरा कहती है ये 5000 होने चाहिए भाई, राइट? तो कैसे फिर हुमैरा उनके साथ जो है वो इंगेज करें. तो इधर फिर हमारा वो प्रमोशन के एलिमेंट्स आएंगे, एंगेजमेंट के एलिमेंट्स आएंगे, और एक लफ्ज में इस्तेमाल करना चाह रही हूँ जो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, जितनी जल्दी डेवलप कर लें उतना फायदा रहेगा, विच इज कॉल्ड ब्रांडिंग. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप में देयर आर 2 things that you are working at. You are developing 2 brands simultaneously. An entrepreneur, him or herself, is a brand. Right? You have to. हुमैरा, जब मैं आपका नाम लिखूं ना, हुमैरा के साथ perhaps कुछ भी गूगल के ऊपर, मुझे बताएं आप में से कितने लोग गूगल के ऊपर अपना नाम जब लिखते हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं आ जाते हैं, आपकी कुछ तस्वीरें आ जाती हैं, कुछ लिखा हुआ आपके बारे में. हुमैरा का कुछ आता है कि नहीं आता? आता है ना, ग्राफिक नाम आ जाता है ब्रांड. ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी अपनी ब्रांडिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन के ऊपर आपकी सिचुएशन क्या है? आई एम नॉट कवरिंग पर्सनल ब्रांडिंग हियर, बट माय टिप इज कि आपके पास, आप तो 2 ब्रांड्स बनाते हैं. एक आपका पर्सनल ब्रांड होता है जो आपको डेवलप करना होता है. शुरू में योर पर्सनल ब्रांड इज वे अहेड देन योर स्टार्टअप ब्रांड, राइट?
gradually your startup brand should move ahead of your personal brand. Can you see what I'm talking about? You leverage your personal brand for your startup brand. You leverage it, right? I have done it myself, and I think this is the way this is the way forward, especially when you have less money. And in our environment, we don't have any. Over to you guys. Any questions so far? तो Zain, जो हम बात कर रहे थे कैपेसिटी की, मुझे लगता है ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए upfront, other than the technical knowledge when you go out in the world of entrepreneurship or in the world of startup. Over to you, Zain. ठीक है. Now it is clear because now मैं अब मुझे picture clear है. Connect कर पा रहा हूँ मैं अब. Good. जी, कोई और चीज जो किसी ने पूछनी है, because I have to go back. Okay. All right. Now, guys, अभी तक हमने देखा कि entrepreneurship जो है वो क्या है. हमने ये भी देखा कि capacity का क्या मतलब है. Because मैंने आपको पहले ही कहा था कि it's not like a couple of things. Actually, it's a whole picture. And वो picture आपकी capacity ही उसको develop करती है. वो actually वो picture आपकी capacity है, जो picture की हमने भी बात की है. Different elements of it. All right. So एक concept जो मैंने शुरू में बताया था कि effectuation. Now, what is this concept? Now, मैं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, इसीलिए मेरी पहली असाइनमेंट तो सारे सुन लेना जो मेरे पास ब्लेंडेड लर्निंग वाले. आपको अगला चैप्टर पढ़कर आना है यहाँ पे. जो अगला मॉड्यूल है, before you come to me in the next session on Friday, inshallah. So you should have read. अभी बता देती हूँ. हमारा अगला जो है वो converting ideas into opportunities. That everybody should do it before coming to me. And so let's go back to introduction to entrepreneurship. Okay, so effectuation जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा. मैं इस वक्त आपको क्रक्स जो है इसका मैं आपको बताने लगी हूँ. ये 2 वीडियोस अभी मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ. काइंडली आप उसको देख कर आइएगा. नेक्स्ट सेशन में we can have a question and answer session about this first session, and then we'll move forward to the second session. Now, entrepreneurship is about turning an idea into a valuable enterprise under a certain level of uncertainty, यहाँ तक हमें पता है, by remaining in control of, यहाँ से आइए effectuation, in control of what you want to achieve, and how you want to achieve it. Can you see what I'm talking about? What you want to achieve and how you want to achieve it. Now, ये कॉन्सेप्ट जो effectuation का है वो ये कहता है कि भाई सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन ये पता है कि what you want to achieve, और साथ ये भी पता है how you can achieve. So for example, आप क्लाउड किचन की बात कर रहे थे, ठीक है. Now क्लाउड किचन में आपको बस ये पता है कि मैंने क्लाउड किचन को मैंने एग्जीक्यूट करना है, ओके, बट हाउ यू वांट टू अचीव इट, क्या वो स्ट्रेटजी आपके पास है? ना आपका जो effectuation का कॉन्सेप्ट है वो आपको हेल्प करता है वो स्ट्रेटजी बनाने. ठीक है. तो मैं और जैसे बहुत सी सो ये रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बहुत सी चीजें वही नजर आएंगी जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, बिकॉज दिस इज द रियल impactful research that the lady has done, Sara Saraswati. Now, entrepreneurship does not stop at finding an idea, but actually starts from turning a valuable idea into an enterprise, right? Which underlines the action-orientedness required in it. Additionally, an entrepreneur remains in control of what they wish to achieve, right? लेकिन इस तमाम को करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है. अब वो स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं कि भाई वो स्ट्रैटेजी बनेगी. Now, the first thing is the reasoning, the very logic, that you use to develop the strategy. ये मैंने आपके सामने ये एक फिगर रखा है, right? और ये जरा इसको देखें और मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ में आए. Anybody who would like to go first? Idea should be executed at the right time with right knowledge. Okay. So इसमें आप देखें कि आपने कहा कि ये आइडिया है, लेकिन इसमें ना जो चीज आपको so existing set of means, तो कुछ existing set of means होंगे, आइडिया होगा, उसमें टाइम होगा और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है. लेकिन एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है जिसपे लिखा हुआ है प्री डिफाइंड गोल्स. तो आपने पहले से गोल सेट किया हुआ है, राइट? और आप अपनी एजुकेशन को उसमें यूज कर रहे हैं, अपने टाइम को यूज कर रहे हैं और अपने क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं. या now this kind of thinking is called managerial thinking.
ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैनेजरियल थिंकिंग में और इस थिंकिंग में क्या फर्क है, व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। So your goal is the main focus जो के दरमियान में, और these और your knowledge, money, time, idea उसको enrich करते हैं और उसको एक creative idea को make it a viable solution and so यहाँ पे देखो they got new means, they got new means, उन्होंने कुछ पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया है और ये कुछ नेटवर्क भी आ गए, ठीक है। Now this is called strategic thinking, finding new means to reach the already defined goals. अब मैं आपको दिखाती हूँ effectual thinking, जिसको हम entrepreneurial thinking कहते हैं, इसको भी explain करें। Alright, so it's more of an agile thing that you have an idea, आपके पास means थे, आपने एक चीज उसकी एक बेसिक प्रोडक्ट बनाया और ओवर टाइम इसको फिर आपने इम्प्रूव करते गए। So आपका जो एंड गोल था ना वो हेजी थे, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं थे। विद पैसेज ऑफ टाइम वो डिफाइंड, वो क्लियर होते गए, ठीक है। तो जो अब मैंने और ये क्यों होता है, बिकॉज देखें जब एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन फॉर दैट मैटर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम होता है, तो वो पहले एक गोल डिफाइन करते हैं, फिर उस पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर तो है ही चीते, वो तो एक्शन ओरिएंटेड है, उनके वो कहते हैं यार हमारे पास तो टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तुम लोग बैठो बिजनेस प्लान बनाओ 6 महीने का, अब 6 महीने का बिजनेस प्लान बना के जब वो उसको जो एग्जीक्यूट करते हैं तो पता चले ओए ये तो हुआ ही। Am I right? So a lot of times this has happened. Entrepreneurial thinking, by the way, which can also be introduced in any organization for that matter. So I was talking to CEO of Jazz, जो है उनका नाम आमिर इब्राहिम। So I was talking to Amir Ibrahim and he said कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग है ना। एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग का मतलब है कि भाई हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मीन्स है, व्हाटएवर एग्जिस्टिंग मीन्स वी हैव, उन एग्जिस्टिंग मीन्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और डिफरेंट गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। नाउ द गोल्स आर नॉट वेरी मच प्री डिफाइंड बट समवट डिफाइंड बिकॉज दे आर हेजी, और इनको यूज करते हुए किसी के साथ भी वो क्लिक कर देंगे, वो हमारा फाइनल फिर वो आउटकम आ जाए। कैन यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो आप अपने मल्टीपल चीजों के साथ चलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को कंफ्यूज कर दें, दैट आई डोंट मीन बाय, लेकिन आपके डिफरेंट गोल्स होते हैं जो हेजी होते हैं, और जैसे आपका जर्नी आगे जाता है तो कुछ गोल्स आपके क्लियर होना शुरू हो जाते हैं कि यस दे कैन बी अचीव्ड, और आप उस पर फोकस कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? ये सबको क्लियर हुआ है कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग? या तो और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पहले ढूंढने हैं या ये एग्जिस्ट करते हैं, और इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। योर कैपेसिटी, योर एजुकेशन, योर क्रिएटिविटी, योर टाइम, योर मनी, दीज आर योर एसेट्स, राइट? हाउएवर योर नेटवर्किंग इज आल्सो योर एसेट, और नेटवर्किंग को आगे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय दैट, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। इसको मैं अभी बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी बिकॉज देयर इज अ होल चैप्टर, लाइक होल सेशन अराउंड इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इफेक्चुअल मार्केटिंग एंड दिस कॉजल प्रोसेस मार्केटिंग। कॉजल प्रोसेस मार्केटिंग ऊपर जैसे कॉजल थिंकिंग थी, विच इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो कि एक टिपिकल थिंकिंग है, बिजनेस में लोग रखते हैं। हमारी मार्केटिंग ऐसे नहीं होती। इफेक्चुअल मार्केटिंग जो है ना वो बड़ी फर्क होती है। और अभी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अब इफेक्चुअल मार्केटिंग भी शुरू करते हैं, लेकिन हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब भी हम मार्केटिंग की बात करेंगे मैं इस साइड पे दोबारा आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि देखो इस तरह से हमारा जर्नी शुरू होता है। ये हमारा इट्स अ क्रिटिक एक्चुअली ऑन मार्केटिंग। अगेन आई टीच दिस STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, राइट? लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरियल में जाएंगे, जिसको हम इफेक्चुअल मार्केटिंग बोलते हैं, वो बड़ी डिफरेंट होती है, और वो हम देखेंगे कि वो उसमें हमने कैसे इवॉल्व होना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। इसको पढ़ लीजिएगा जस्ट फॉर द बैकग्राउंड। नाउ हियर इज अ डील, दिस इज अ रियल डील। नाउ दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्चुएशन। ऊपर हमने कहा ना कि आपको जो है वो इफेक्चुअल स्ट्रैटेजी बनानी है,
आपको फैक्चुअल माइंडसेट लेकर आना है, और उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि जी आपने नेटवर्क्स को कैसे यूज करना है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्चुएशन एक्चुअली हेल्प यू इन डेवलपिंग दोस नेटवर्क। एक चीज होती है बर्ड इन हैंड, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी आप लोगों के, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ब्रेक हियर। हाउएवर इन 10 मिनट में आपने करना क्या है, पूरी ब्रेक नहीं है, जहां मर्जी जाएं, लेकिन अपने लैपटॉप्स को खुला रखें और इसको देख लें। यू गाइज हैव एक्सेस ऑफ दिस कोर्स। नाउ व्हाट यू गोना डू इज, एक तो आपने ये पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्चुएशन, राइट, और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद और से रिफ्लेक्ट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ चले जाना, ठीक है। सॉरी, आपने जो है इसको पढ़ने के बाद आगे ये वाली हम बाद में देखेंगे। आपने ये इफेक्चुअल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ना है और उसके बाद आपने चले जाना है इसके ऊपर इफेक्चुअल सिमुलेशन पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 3 एनिमेशंस रखी हुई हैं, इन 3 एनिमेशंस को आपने देखना है। आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट लगेंगे आपको काम करने में। ये तीनों वीडियोस देखनी है, राइट, और आपने इसको रीड करना है जो ये आपकी रीडिंग है। There we go. There's effectual process and principles. Is everybody clear what you are supposed to do in your break time of 15 minutes? Am I right? Yes, ma'am. Perfect. Yes. So अभी क्या होगा, मैं इस सेशन को क्लोज करने लगी हूँ, मैं ये सेशन दोबारा शुरू करूंगी। अच्छा गाइज, अभी हमारे प्रिंसिपल यही है कि हम जब भी सेशन शुरू क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये आपके नोटिफिकेशंस होते हैं। मैं यहाँ पे मैं जब भी सेशन के अंदर आऊंगी, मैं आपका लाइव कॉल का आपको नोटिफिकेशन सेंड करूंगी, जो मुझे यहाँ दिखा लेने दें, जो आपको यहाँ नजर आए। कोर्सेज में आप अपने जब कोर्सेज में लैंड करते हैं, बिफोर गोइंग इनटू इनसाइड, आप अपने मेन पेज पे आए जहाँ पे आपके सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, और वहां पे यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक वो लाइव वाला आपको मैसेज आया था, याद है आपको? यस। कुछ देर बाद वो खत्म हो जाता है। सो मैं करती क्या हूँ कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा आके करूंगी ताकि वो आपको नजर आए। सो लेट मी गो टू सुपरवाइजर, मैं यहाँ पे आपका लाइव सेशन कॉल करती हूँ, ठीक है। जैसे ये लाइव सेशन कॉल होता है, कुछ देर बाद जो है आपको भी यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाता है, जो स्टूडेंट वाली साइड है, और वो आपको नजर आ जाता है कि जी आपका लाइव सेशन जो है वो कॉल हो गया है। ये देखें, आपको नोटिफिकेशन आता है, ये आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप मेरे लाइव सेशन के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ ये सबको क्लैरिटी है। सो दिस इज द वे वी हैव टू ब्रिंग इन। आर वी गुड एवरीबॉडी? यस। परफेक्ट। सो थैंक यू गाइज।